Please don't fellas. अभी 1 मिनट रुको, मैं जरा तुम्हारा ये अटेंडेंस की लगाता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, शुरू करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो हम शुरू करते हैं और दो एडमिट करते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने, हाँ उसका वो थोड़ा बहुत सिंपल था, उसका वो रह गया था ना। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट वो 2-3 लाइन में आपकी कर देता हूँ। बेसिकली हम दिखाना चाहते थे बेसिकली हमारा था कि x स्टार, अरे यार ये क्यों नहीं लिख रहा है? तो हम उसमें दिखाना चाहते थे, जो ना पार्ट ए था उस क्वेश्चन का, वो ये था। इसको क्या हो रहा है? वो ये था कि y star is isometrically isomorphic to x star by y perp। तो बेसिकली हम सब चुका चुके थे। आइसोमेट्री में एक चीज थोड़ी सी रह गई थी, है ना? तो सो लेट मी, वहां पे मैं जाता हूँ आइसोमेट्री वाला हिस्सा। आधा हमने किया था, यानी हमें दिखाना है, हमें एक्चुअली डिफाइन किया था एक मैप फ्रॉम x star by y perp to y star, and you have to remember that y is a closed subspace. Of the normal linear space x। तो मैप हमने डिफाइन किया था f of x star plus y perp is nothing but, what's it, x star restricted to y। So हमने सब कुछ प्रूव किया था। To prove the isometry हमने हान-बानाक थ्योरम यूज किया था, कि वहां पर हमने दिखाया था। then for each, चलो मैं वहीं जाता हूँ। For each y star belonging to y star, there exists x star belonging to x star such that, मतलब by हान-बानाक थ्योरम, such that f of x इससे प्रूव होता था ऑन टू, वहीं पे थोड़ी सी दिक्कत थी। x star y perp is equal to x star restricted to y, that's equal to y star, and norm of y star is equal to norm of x star। ठीक है ना? अब हम ये दिखाना चाहते हैं, नाउ पहला तो ऑब्वियस है, वो ये कि norm of, क्या है अपना, ओके, norm of f of, पहले चलो ये करते हैं इजी वाला। norm of y star is equal to norm of x star। I should just, क्या करूं, रबर 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 चाहिए। हाँ, तो उसमें ये था, हमें इसको दिखाना, ये आइसोमेट्री है, यानी norm of this thing is equal to norm inside, यानी हमें दिखाना है बेसिकली to show that also, मतलब this proves that f is onto, वो हमने वहां लिखा था।
course, and I have to show this thing. Y perp is exactly equal to norm of x star plus y perp. लेकिन ये बराबर है norm of x star के, हमें दिखाना है basically this is equal to norm of x star plus y perp. ये चीजें हमें दिखाना है, ठीक है. This is what we have to show, क्योंकि ये इसके बराबर है. Now पहला तो obvious है. Now norm of f of x star plus y perp is equal to norm of x star, which is greater than equal to infimum y belonging to y perp, because it's a subspace, तो इसमें 0 भी है, which is equal to norm of x. ये हम कर चुके थे, तो सीधा ही था. यानी I have got norm of f of x star plus y perp. ये हमने शायद किया अभी, but doesn't matter. एक बार और भी लिख लेंगे तो क्या है. Now इसका उल्टा दिखाना है. Also, for all y star belonging to annihilator, x star plus y star restricted to y is the same thing as x star. Why? Because चलो मैं लिखता हूँ x star y star applied to y would be equal to x star of y plus y star of y. लेकिन चूंकि ये annihilator में belong करता है तो ये 0 है, so this is just x star at y. इसका मतलब जब मैं इसको y पे restrict करूंगा it is just x star, ठीक है ना. तो अगर ऐसा है, now we know that अगर if I take the restriction of a map, now इसका मतलब ये हुआ x star plus y star restricted to y in norm is less than equal to norm of x star plus y star. क्योंकि जो restriction होता है it's supremum over a smaller set, so therefore it would be smaller. Now which would imply, लेकिन ये तो बराबर है x star के. This is true for all y star belonging to y perp, right? This is true for all y star belonging to y perp, which would imply that norm of x star is less than equal to infimum y star belonging to y perp, norm of x star plus y star, that is equal to norm of this coset norm x star plus y perp. यानी इसका रिवर्स भी हो गया, which implies that, लेकिन ये तो है f of, it implies that f of x star plus y perp in norm y perp, sorry, is less than equal to norm of x star plus y perp. तो ये एक्चुअली तुम्हें ये यहाँ से ऐड करना है, क्योंकि वो तो हम वहां पे कर ही चुके हैं. This portion has to be added. So अगर मैं इसका नाम रखूं first and second, जो भी तुम चाहो वहां पे, so therefore by first and second it's an isometry, and I have got f of x star plus y perp in norm is equal to norm of x star plus y perp, which implies that f is an isometry. बस इतना ही लिखना है. वैसे मैंने ये तो मैंने थोड़ा रिपीट करा है, लेकिन बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है यहाँ, ये तो हम कर चुके थे. ये वाला पोर्शन जो अदर साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, उससे हो जाएगा. ओके, लेट्स फिनिश दिस एंड कम टू द weak topology and weak star topology. So let us do जो हम वह करते थे. तो weak topology on X is the topology, फिर से मैं लिखता हूँ, generated by this family by X star on X. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मैंने बोला था इस टोपोलॉजी को हम ऐसे भी लिखते हैं, X star पहले, it is generated by X. इसी तरह से अगर मैं तुम्हें कहूँ weak topology on X star,
is topology generated by same idea x double star on x star. So this is weak topology. मतलब हमने stars बढ़ा दिए, right? What does that mean, generated by x star? It means that it is the smallest topology under which x stars are continuous. तो उसके लिए हम क्या तरीका करते हैं, इसका जो सब बेसिक सेट बनाएंगे, सब बेसिस इसकी हम बनाएंगे. सब बेसिस इसकी होगी इस टाइप की. It would be now sub basis element, typical sub basis element. Typical में लिखता हूँ चलो. Of x of चलो मैं लिखता हूँ weak topology on x would be, it would be of this type. It would be, how do I write it? All x belonging to this. So I have to ensure that your inverse image of open sets in K, because all these mappings are from X to K. So let me call them FG. तो मेरे कहने का मतलब है मैं just to give them a feeling of mapping जो तुम usually करते हो. So suppose मैं जब कह रहा हूँ FG वो belong करते हैं X में, तो you have to show that मतलब किसी भी X पे and चलो मैं इसे लिखता हूँ f of x minus g of x is less than epsilon for any epsilon positive. इस तरह से, यानी इस तरह से क्या होगा, इस तरह से of course for all f g belonging to x star. तो इसका मतलब क्या होगा, इसके हिसाब से हर कोई मैप जो होगा, आई शुड, मुझे चलो ऐसे में करता हूँ, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है लिखने में ना, नोटेशन में. चलो मैं ऐसे करता हूँ. मुझे ढूंढना है एक सब बेसिस एलिमेंट ऑफ x अंडर वीक टोपोलॉजी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं लिखता हूँ सब बेसिस एलिमेंट एट अ पॉइंट, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हमें फिर रन चीजें करनी है, इसलिए मैं लेता हूँ सब बेसिक एलिमेंट दैट कंटेन्स अ सर्टेन पॉइंट. So let me take sub basis element of a weak topology at x belonging to x. वो easier है to write. But फिर all x's के लिए उनको collect करो तो you will get all the sub basis elements. तो ये जो local sub basis element होगा वो इस type का होगा, मुझे लगता है y belongs to x such that f of x minus f of y is less than epsilon for all f belonging to x star, क्योंकि ये for all f आ रहा है and for all epsilon positive. तो ये इसकी सब बेसिस होगी at a point x. तो हमने लिया इस तरह से, हमने किया मतलब what does this ensure? It ensures that all f's belonging to x star are continuous. यानी inverse image around any neighborhood of f in K, किसी भी नेबरहुड f की जो उसकी जो इनवर्स इमेज है x में वो कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि मैंने सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव यानी सारे पॉसिबल ओपन नेबरहुड्स इन k अराउंड fx मैंने लिए अंडर द फंक्शंस f, और फिर उनकी इनवर्स इमेज को जब मैंने यहाँ लिया, यानी अंडर दिस टोपोलॉजी ऑल, जब मैं इसको सब बेसिस बनाऊंगा तो सब बेसिस का मतलब ये है, अच्छा ये सब बेसिस मैंने जब कहा सब बेसिस का मतलब ये है, if I take their finite intersections I will get a basis element of weak topology. सभी possible finite intersections लूंगा या I will get a sub basis element. और तो once I get this basis element, अब basis element से topology बनाना तो easy है, you take all unions. तो ये जो all unions से generate होगी ना collection, वो होगी weak topology. So इस तरह से होगा. I hope. अब इसके बाद अगर तुम इतना याद रखोगे, मतलब टोपोलॉजी को जनरेट करना कैसे है, वही तो होना चाहिए ना. वी शुड हैव अ मेथड टू
decide what sets are open and what sets are not open. तो अगर once that's clear तो topology is clear. अब दूसरी टोपोलॉजी जो थी वो थी वीक स्टार टोपोलॉजी. Now weak star topology on X star. तो मैंने कहा था I can identify X with J of X. मतलब आइडेंटिफिकेशन ऐसे करते हैं, यानी it's isometrically isomorphic to J of X which lies in X double star. So I can think of J of X as a subset, है ना? I can think of J of X as a subset of X double star. So it means J of X, which is isometrically isomorphic to X, is a collection of bounded linear functionals on X star. So this is a collection of, now I can forget J of X, but usually हम इसको फिर X cap कर देते हैं. Just to denote it is not the same as X, it's a copy of X. X cap लगा देते हैं. It's just a copy of X that lies inside X double star. Now X double star is a collection of mappings on X star. जैसे कि हमें पता है weak topology on X star would be generated by X double star. Now, but it has a sub collection. अगर मैं खाली वो sub collection लूं, then I would get a situation like this. X. Now this is weak star topology on X. By that I mean I am identifying it with JX, which is a collection of bounded linear mappings on X star, which is a subspace of X double star. तो मैंने एक छोटी collection ली और उससे उसी तरह से weak topology generate की. राइट हाँ, लेकिन ये एक्स डबल स्टार्स है, मतलब जब मैं जे एक्स को करता हूं आइडेंटिफाई विद एक्स डबल स्टार, सो एक्स डबल स्टार which belongs to jx, it is defined as x double star at x star is equal to x star at x. और just to denote कि ये actually jx में है, of course it is contained in x double star, right? It's a subspace. तो इस x double star को हम usually लिखते हैं x cap at x star is equal to x star at x. कहने का मतलब इसका एक रिश्ता है x के साथ. By this relation, यानी इसकी डेफिनेशन ये है. तभी ये यानी इस डेफिनेशन के बगैर जो एलिमेंट्स x डबल स्टार में होंगे, जो कि होंगे क्योंकि ये जो मैप है कैनोनिकल मैपिंग, इट्स नॉट ऑन टू इन जनरल. अगर रिफ्लेक्सिव स्पेस है तो फिर हर एक x डबल स्टार ऐसा ही है, अगर नहीं है तो फिर इस तरह से होगा, राइट? और इसको कभी कभी हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये जो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं fx और इसका नाम रख देते हैं f उस टाइम. तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट. x कैप का नाम या जो x डबल स्टार इस तरह से एक्ट करता है उसको f रखा, और इसको f मतलब यहाँ पे f belongs to of course x star and x belongs to x, then this f sub x belongs to x double star. लेकिन अगर तुमने फंक्शनल एनालिसिस फर्स्ट पढ़ा है तो उसमें हमने इस पे काफी थियोरम्स किए हैं, रिजल्ट्स किए हैं वीक स्टार टोपोलॉजी पे, सो वहां पर तो ये बहुत बार यूज हुआ होगा. आई डोंट थिंक इसमें प्रॉब्लम है. लेकिन क्वेश्चन इज, जब मैं कहता हूँ वीक स्टार टोपोलॉजी, व्हाट डू आई मीन? आई मीन ऐसी टोपोलॉजीज ऑन एक्स स्टार. नाउ वीक स्टार टोपोलॉजी ऑन एक्स स्टार would be such that this fx, sorry मैंने हाँ, ये जो fx's है ना सारे के सारे, they are continuous. Smallest topology, यानी मुझे लेनी है inverse image of open sets in K under these maps fx's in x star, right? उसको मैंने एक सब बेसिस बनाना है, और जब मैं उसको सब बेसिस बनाऊंगा, यानी अगर मुझे ढूंढना हो एक टिपिकल, let me write it down properly, एक सब बेसिस एलिमेंट इसका कैसा होगा. तो इसके बाद हम थ्योरम करने ही वाले हैं, तो चूंकि मुझे वो चाहिए वहां पे, तो लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. तो इसका सब बेसिस एलिमेंट क्या होगा? सपोज आई एम लुकिंग एट सब बेसिस एलिमेंट. सब बेसिस एलिमेंट मतलब जिसके फाइनाइट इंटरसेक्शन से मैं फाइनली टोपोलॉजी जनरेट ऐसी करूं which would always contain that sub basis, जो collection. So now let f belong to x star. I could easily write it as x star. तो ये notations का खेल है, लेकिन but you understand ना, जब मैं कह रहा हूँ f belongs to x star,
तो इट इज जस्ट एन एलिमेंट ऑफ एक्स स्टार, व्हाटएवर द नोटेशन, मीनिंग तो एक ही रहेगा। ओके, तो उसका जो सब बेसिस एलिमेंट होगा, इट वुड बी ऑफ द फॉर्म all g belonging to x star such that क्या होगा, fx at f minus fx at g is less than epsilon for all x belonging to x and for all epsilon positive। ये जो होगा इसके सब बेसिस एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये इसका सब बेसिस एलिमेंट होगा। मैंने सभी जी लिए सच दैट ये जो एफ एक्सेस हैं ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे। And of course, it is the same as, अगर तुम देखोगे, g belonging to x star such that fx at f is f of x. So it is f of x minus g of x is less than epsilon for all x belonging to x and for all epsilon positive. ये इसकी सब बेसिस बनेगी। यानी अगर मैं बेसिस एलिमेंट्स ढूंढना चाहूंगा तो I have to get a finite intersection, a finite sub collection of these sorts of sets and taking their intersection. Now if you want to compare it with sub basis element on weak topology, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे भी fx minus fy है, यहाँ पर भी fx minus fy है, यहाँ पर भी वही है less than epsilon अगर तुम पीछे जाओगे। लेकिन वहां पे यहाँ पे you have got for all f belonging to x star, right? लेकिन weak star topology में x रन करता है, हाँ, यहाँ पे f रन कर रहा है और x स्टार, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे x रन कर रहा है, राइट? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, बट उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा एक तो रिवाइज करोगे फिर इसको इस तरह से देखोगे। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट, अब थोड़ा सा अब्यूज ऑफ नोटेशन, मतलब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको कभी कभी हम x ही लिख देते हैं बिकॉज इट्स आइसोमेट्रिकली आइसोमॉर्फिक टू x। द ओनली थिंग इज जब हम इसको इस तरह से लिखें तो वी वांट टू वी आर टॉकिंग अबाउट सबस्पेस ऑफ x डबल स्टार, राइट, which has this property x cap of x star is x star at x or fx at f is equal to f of x, और चाहे तो ऐसे भी लिख लो, मतलब तीनों में से कोई भी नोटेशन, तीनों के अपने बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि लोग खामखा नोटेशंस एक किस्म की दूसरे किस्म की रखें, मतलब इट्स क्या बोलते हैं ना, कभी कभी अनअवॉइडेबल डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नोटेशंस डिफरेंट के लिए। ओके, सो लेट्स डू दिस इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि ये हमें यूज करना होगा गोल्डस्टाइन थ्योरम प्रूव करने के लिए। वो ये है थ्योरम। अब थोड़ा सा फिर से तुम थोड़ा सा नोटेशन में फंसोगे नहीं ज्यादा। Now given a continuous linear functional phi, let me call it phi, on x star under weak star topology, और अगर मुझे इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, x star under weak star topology का मतलब है topology generated by x on x star, ठीक है? There exists x belonging to x cap such that x belonging to x such that phis of the form x cap, ये थोड़ा सा डीप है थ्योरम, डीप इन द सेंस वेरी डीप है, आई कैन नॉट से कि इसमें कुछ ऐसा ही है, इजी है, तो थोड़ा मैं बताता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नाउ थिंक ऑफ इट, अब जो x स्टार है अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी, राइट, जो अंडरलाइंग सेट है ना, वो तो सेम ही है, सो इट इज अ वेक्टर स्पेस, वेरी गुड, ठीक है ना, वेक्टर स्पेस, क्योंकि अंडरलाइंग सेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। हमारा क्राइटेरिया देखो x स्टार इज अ वेक्टर स्पेस, उसमें तो कोई शक नहीं। अब जब मैंने इसको लिया नॉर्म, तो एक टोपोलॉजी है, जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x डबल स्टार,
तो ये भी एक नॉर्मल लीनियर स्पेस, ये एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है। यानी नॉर्मल लीनियर स्पेस का मतलब इसमें एक टोपोलॉजी है, बट दैट टोपोलॉजी इज गिवन बाय नॉर्म। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक्स स्टार को कंसिडर करूं अंडर वीक स्टार टोपोलॉजी, इस पे वेक्टर स्पेस तो है ही, लेकिन इस पे अब टोपोलॉजी इज गिवन बाय, इट इज जनरेटेड बाय एक्स, collection of mappings X when identified as a subspace of X double star. तो कहने का मतलब now अगर कोई चीज वेक्टर स्पेस है then you can define a linear map on it. और अगर कोई चीज अब कहीं किसी पे टोपोलॉजी डिफाइन है तो you can define a continuous map on it, right? मतलब टोपोलॉजी है तो कंटिन्यूटी है। तो इसका मतलब अगर मैं लूं अब इस पे, मतलब अगर मैं इसका डुअल लेता हूं, डुअल का मतलब all mappings which are continuous, यानी f is a map from, चलो मैंने फी रखा है ना, फी, तो फी is a map from x star to k, लेकिन फी इज लिनियर, दैट्स फाइन, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मैं x स्टार पे वीक स्टार टोपोलॉजी ले रहा हूं, फी इज कंटिन्यूअस व्हेन आई एम टेकिंग द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स टू बी जनरेटेड बाय x, यानी जो मैंने अभी यहाँ किए थे ना इस टाइप के, जो इनके फाइनाइट इंटरसेक्शंस जो होंगे उस टाइप के ओपन सेट्स जब मैं लेता हूं, ऑन दैट बेसिस इट इज कंटिन्यूअस, नॉट द नॉर्म टोपोलॉजी। तो वो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। अब मैं साथ में क्या कह रहा हूँ कि ऑफ कोर्स ये जो कलेक्शन ऑफ फंक्शनल्स होगा, ये दिस वुड बी अ सबसेट ऑफ एक्स कैप, यानी दिस वुड बी आल्सो कंटिन्यूअस एंड अंडर, जो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जब मैं ये देखो, फिर से मैं देखता हूँ, फिर से मैं बात करता हूँ। देखो जब मैं कह रहा हूँ ना मैंने एक्स स्टार पे लिए फंक्शनल्स, है ना, मैंने वीक स्टार टोपोलॉजी ली, फिर लिए बाउंडेड लीनियर। अब जब मैं कह रहा हूं एक्स कैप की बात, इट इज एक्चुअली जे एक्स, है ना, विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स डबल स्टार। तो ये जो एक्स स्टार है, दे आर जे एक्स विच इज अ पार्ट ऑफ एक्स डबल स्टार। तो कहने का मतलब एक्स डबल स्टार का हिस्सा होने का मतलब ये है कि एक तो ये they are bounded linear maps on X star when I am considering the norm topology. Furthermore, they are of which type? They are of the type which has this property x cap at x star is equal to x star at x. मुझे लगता है आगे मैं इसको फर्दर, अभी ये इंट्रोडक्शन है इस चीज में क्या हम कर रहे हैं इसमें, लेकिन मैं मानता हूँ थोड़ा सा जो तुमने अभी तक किया थोड़ा सा उससे अलग है। ओके, सो अब मेरे पास एक फंक्शनल है, व्हाट आई डू, लेट m, थोड़ा लंबा थ्योरम है ये, मुझे शायद दूसरा भी इसी में लगेगा, m be equal to kernel of p, right? Now if m is equal to whole kernel, यानी phi इसका मतलब है जीरो ऑपरेटर है, तो then phi is zero, we take x equal to 0, which would imply that x cap is equal to 0 and we are done. यानी हमें एक मिल ही गया x cap, क्योंकि अगर मैं x 0 लेता हूँ x cap is 0, ठीक है ना, x cap is 0 as a functional, and you have to remember why is that the case, x is equal to x cap of x double star is equal to x double star at, sorry क्या लिख रहा हूँ, x cap at, अभी लिखा मैंने, x star is equal to x star at x, और अगर तुम x को 0 लेगे तो ये होगा 0 for all x star from to x, क्योंकि लीनियर मैप would send 0 to 0, अगर x 0 है तो ये 0 ही होगा। ओके, so we are done अगर ऐसा है। so assume to the so assume that it's a proper subspace, yani M is a proper subspace of X star. Of course it's a subspace because it is kernel of a linear map. Okay, then agar aisa hai, then there would exist some, let's call it F, belonging to X star such that F does not belong to kernel of F, yani equal to M,
सो अगर ऐसा है, that is we can choose then phi of f to be equal to 1. ये मैं कह चुका हूं कि अगर कोई जीरो पे मैप नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे वो कर्नल ऑफ phi है, तो अगर phi के कर्नल में नहीं है तो आई कैन ऑलवेज मेक इट 1. तो तुम्हें पता है कैसे. सो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि m है एक सब स्पेस और phi of f is not equal to 1. And let's move to next step. Now since now अब जो ये हमारा मैप था, ठीक है ना, phi belongs to सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, मेरी Yes, आवाज sir. Yes sir. बीच में बंद हो गई थी. हेलो, अरे जवाब Yes, दो, sir. तुम सो रहे हो क्या सर? अच्छा, जब तक तुम बोलोगे नहीं आवाज आ रही, मुझे कहां से पता चलेगा तुम्हें आवाज आ रही है? What I am trying to say is this: kernel of phi will be a closed set जो यहाँ under the topology जो x star पे है, so it would be weak star closed. तो मैं लिखूंगा since M is weak star closed, there exists a weak star neighborhood of f, let's call it V of f, such that V intersection n is equal to phi, of course. Because why? F does not belong to M, ये तो हमें पता ही है. General topology में अगर M closed है, then you can find a neighborhood around F, जो भी वो topology हो, जो भी open set हो, such that it does not intersect M. अब मैं यूज कर रहा हूं definition. By definition अब मैं लेता हूं एक basic set, क्योंकि every open neighborhood would contain a basic set containing this. अब ये basic set है, it would be finite intersection of the sub bases जो मैंने अभी बात की. By the definition of weak star topology, ये important है यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे तो मसला नहीं. There must exist some finitely many epsilon 2. मैं finite intersection ले रहा हूँ उस sub bases की, which are positive, and some finitely many members inside X, such that इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, V जो basic element, I should have V of F is equal to all, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, क्या करूँ मैं इसको, चलो लिखते हैं पहले, फिर मैं देखता हूँ नोटेशन का समझते हैं. F of xi minus g of xi is less than epsilon I. I runs from 1 to n. This is a basic element because it is actually, मतलब I am taking that, मतलब इनका जो intersection है, how should I, चलो अगर मैं इसका intersection हूँ, चलो ठीक है. Let me write here I runs between 1 and n, ठीक है ना. इसको मैं लिखूंगा I runs from 1 to n. This must be contained inside V, क्योंकि ये एक basis elements है around F. तो चूंकि F का open set है, तो I should be V is an open set that contains
V is an open set that contains, it's a weak star open neighborhood of F. It must contain a basic element around F in weak star topology. So which would imply basically, agar intersection hai, I should write it like this. G belongs to X star such that F of Xi minus G of Xi is less than epsilon I. I runs from 1 to n. इसको इंटरसेक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ कर रहा हूँ ना आई रन्स फ्रॉम 1 to n. इसमें नोटेशन में थोड़ा सा ये सब बेसिस डिस्क्राइब करते जैसे वहां पे हुआ था. लेट्स कीप इट दैट वे. अगर तुमने ये इस स्टेप को अगर ये ना हम समझे कि ये ऐसे होता है, बाकी इसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बेसिस एलिमेंट इस तरह से बनेगा क्योंकि इसी की मदद से हम सारा कुछ करेंगे. इसी की मदद से हम एक मैप करेंगे. define psi from X star to Rn. Because you have to remember these are all scalars, gxi's. So what I am trying to say, I am taking psi of G because G belongs to X star equal to n tuple G of Xi. I runs from 1 to n. Or Xi's are here. Of course, these are scalars. So this is a real number. Because I am assuming it to be a real space. It's a real theorem to make a round. It's about vector spaces on real numbers. So what I'm trying to say, I am defining phi of G to be G of Xi. These are n real numbers. N numbers in the field, and here the field is real numbers. And of course, G belongs to X star. Now since एक लेस देन 1 मिनट है, इसको मैं बंद करता हूँ, फिर हम फिर से ज्वाइन करते हैं क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा फिर से. आई विल एंड इट, तुम फिर से ज्वाइन करो.